Good morning, class. We are talking about the problems related to permutations and combinations. I have shared a set of problems in your WhatsApp group. I hope everyone has solved that problems. In any question, if you are getting any doubt, you can just drop a message to me. I will reply you. Okay. So in the previous class, we have taken the problem, this one. There are 6 gentlemen and 4 ladies to dine at a round table. Okay, just wait. Okay. So we have to, here in this one, in how many ways can they sit themselves so that no two ladies are together? Okay. So this problem will be simply of, okay, the first thing we have to do is here in this one, the we since we have to arrange both gentlemen and ladies, that's why the total number of possible arrangements for 6 gentlemen at a round table will be 6 factorial. Here we will not use 5 factorial, rather we will use 6 factorial. The reason for this is that the position of gentleman will also be also have their significance whenever we are talking in context to ladies. अगर हमें केवल जेंटलमैन प्लेस करने होते तो उस केस में एक पर्सन को हमें फिक्स करना होता क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता. बट हियर whenever we have to place both gentlemen as well as ladies so that we can discriminate between them, in that case the total arrangement will be 6 factorial for the gentlemen, and for ladies we have total 6 places, and at 6 places we have to position these 4 ladies. Therefore the total arrangement will be 6c4, and the value of 6c4 will be 15. Okay, so the answer will be 15 multiplied by 6 factorial, and therefore it will be 15 multiplied by 720.
ठीक है. So you will get the answer to be as 10. It will be like 43200. Okay. Got that? So this is the way to solve this one. Next problem, here we are for how many ways can the letters of the word saloon be arranged if the two O must not come together. So first tell me, what is the total number of arrangements for the word saloon? Yes, anyone? What is the total number of arrangements for the letters of the word saloon? Tell me, anyone? Okay. So, yes, Subi, let me unmute you. Yes, you can say, Subi. Sir, 6 factorial total number of ways. No, no. Here we are having this O two Yes, times. sir. That's why, since we have 6 words, sorry, 6 Yes, sir. letters, out of which O appears for 2 times. Okay, so there is repetition of O. These all 6 letters are not distinct. Okay, so as I have told you, whenever the elements are not distinct, means whenever there is repetition of element, in that case we have to do some division. So therefore the total number of arrangements for the letters of the word saloon will be 6 factorial divided by 2 factorial. By 2 factorial इसलिए because this O appears for 2 times. Out of this, S appear for 1 time, A appear for 1 time, L appear for 1 time, N appear for 1 time, and O appears for 2 times. So whenever there are objects, N1 object appearing for, R1 object appearing for N1 time, R2 object appearing for N2 time, R3 object appearing for N3 time, and so on. So in that case, what? We have to divide that by that quantity. ठीक है? क्योंकि ये जो दो ओ हैं, इन दोनों में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. इन दोनों में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि कौन सा ओ पहले आ रहा है, कौन सा ओ बाद में आ रहा है, क्योंकि दोनों ही सेम लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल. तो देयरफॉर the total number of possible arrangements will be 6 factorial divided by 2 factorial. Done? Let me write here. It will be 6 factorial divided by 2 factorial. This is the total possible arrangements. Okay. अब दूसरा आपसे पूछा गया है if the two O must not come together. Now tell me what is the answer if this 2O has to come together. Tell me what is the number of ways that the letters of word saloon can be arranged if the 2O must come together. दोनों ओ साथ में आने चाहिए. इसके लिए क्या होगा?
Yes, Subhansi, you can say. 5 factorial. 5 factorial. Yes. Okay. Anyone else? So, Subhansi, why it is 5 factorial? सर हम दोनों ओ को एक साथ ले रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं कि वो एक ही लेटर है, तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स बचे 5 तरह के, 5. तो 5 फैक्टोरियल. Okay. That's good. That's the correct answer. Okay. So what we are saying, whenever we have to ensure that these two has to come together, it means if in that case we will consider this both O as one letter. तो इस दोनों O को एक लेटर अगर हम कंसिडर करें तो जब भी ये आएंगे वो एक साथ आएंगे. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, एक S है, एक A है, एक L है और एक O है और एक N है. यहाँ पे O का मतलब डबल O की बात हो रही है. ठीक है. तो सबका अपीयरेंस वन टाइम हो रहा है, तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट लेटर हो गए, 1 2 3, एक O और एक N, टोटल 5 लेटर. तो 5 लेटर्स को अरेंज करने का टोटल पॉसिबल वे कितना होगा, 5 फैक्टोरियल. 5 लेटर्स को अरेंज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल. तो ये हो गया कब, जब दोनों ओ साथ में आ रहे हैं, और ये हो गया जब जब टोटल अरेंजमेंट. ठीक है. तो टोटल में से अगर दोनों ओ साथ वाले माइनस कर दो तो दिस इज द आंसर फॉर इफ द टू ओ मस्ट नॉट कम टुगेदर. ओके. तो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस वन. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get 360 minus 120 and therefore 240. The answer will be 240. Yes, anyone having doubts, you can ask. Anyone? Yes. हाँ वर्तिका, ये जो प्रॉब्लम है वो परम्यूटेशन का है, क्योंकि हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, और जब भी हम लेटर्स को अरेंज करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा. क्योंकि जैसे मान लो आप लिख रहे हो सैलून, तो ये एक दूसरा लेटर है, अगर हम एन को आगे कर दें, ठीक है, तो वो लेटर कुछ और बन जाएगा. तो दैट्स वाई दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन. जब भी ऑर्डर मैटर करता है तो एट दैट प्लेस वी हैव टू अप्लाई परम्यूटेशन. ओके. ठीक है. योगेश, you are say 5 factorial into 2 factorial by 2. That is not required at all. Okay. तो इसको आप डबल करने की जरूरत नहीं है. वैसे आप, ये आंसर भी करेक्ट है, आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन इसमें है क्या बेसिकली कि हम दोनों ओ को अगर एक लेटर माने, दोनों ओ एक साथ आने का मतलब क्या हो गया, दोनों ओ को हम एक लेटर मान रहे हैं. इससे क्या होगा, जब भी ये लेटर आएगा एक साथ ही आएगा. ठीक है. तो उस केस में हमारे पास केवल 5 लेटर हो गए, और 5 लेटर को अरेंज करने का टोटल तरीका कितना होगा, 5 फैक्टोरियल. ठीक है. तो यू कैन सिंपली कंसिडर दिस बाय दिस वे. ओके. तो देयरफॉर द आंसर विल बी 2 4. यस, एनीवन एल्स? शुभांशी. यस शुभांशी. सर हाँ. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आया था, लेकिन उससे मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा, शायद हम कहीं गलती कर रहे हैं. कैसे बताओ. सर हमने एफ ए एल और एन जो 4 डिस्टिंक्ट लेटर हैं उनको हाँ. पहले लिया, और इनको आपस में अरेंज करने के तरीके हो रहे थे 4 फैक्टोरियल. फिर हमने ओ को प्लेस करने के लिए इनके बीच में जो गैप आता है, मतलब एस और ए के बीच में एक गैप, ए और एल के बीच में एक गैप, एल और एन के बीच में एक गैप, और एस के पहले और एन के बाद एक. अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो आप बता रहे हो आंसर एस ए एल एन के लिए 4 फैक्टोरियल, ये तब होता जब एस ए एल एन को हमें 4 प्लेस पे रखना होता, लेकिन हमें एस ए एल एन को 4 प्लेस पे नहीं रखना है, हमें कितने प्लेस पे रखना है, 5. तो मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते, अगर हम बीच के गैप नहीं करके नहीं उसमें नहीं
प्लेस नहीं कराते नहीं हो। नहीं नहीं, आप SALN को 5 पोजीशन पे प्लेस करने का तरीका देखो ना, सर 4 आपका क्यों ले तरीका रहे हो? ज्यादा इजी है, बात सही है, बट वो चीज मेरे दिमाग में पहले आ गई थी इस वजह से। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, SALN को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल तो तब होगा जब हमें 4 प्लेसेस पे पुट करना हो, लेकिन हमें SALN को 5 प्लेसेस पे पुट करना है। 5 क्यों? क्योंकि डबल ओ जो है एक लेटर है, गॉट दैट? आप तो माइनस इसलिए वो कर 4 रहे हैं। फैक्टोरियल नहीं होगा, दैट विल बी, यस यस यू कैन से। आप माइनस करने के लिए कह रहे हैं ना, हम माइनस कर ही नहीं रहे थे, हम सीधे एक आंसर निकालना चाहते थे इस हिसाब से कि वो 4 जो लेटर्स है अलग वाले, वो अपनी जगह रखे हुए हैं और हमें ओ को एक साथ नहीं रखना है। तो हम उन 4 लेटर्स के बीच में जो गैप है वहां ओ रखेंगे, मतलब एस और ए के बीच में एक गैप है, हम एक ओ वहां रख देंगे। ओ को रखने की दूसरी प्लेस फिर से 2 लेटर्स के बीच वाली ही बनेगी। तो हम उन गैप्स को लेके उनमें से कोई 2 प्लेस मतलब चूज करते। लाइक अगर गैप कितने बनते, 1 2 3 4 5 गैप बनते, 5C2 हाँ होते ओ को रखने के, और 4 फैक्टोरियल ये हो जाता। पर नहीं नहीं, फिर वही गलती कर रहे हो। 4 फैक्टोरियल का मतलब ही नहीं है ना। आप सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे सोचो कि ये मान लो कि 5 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, SAL, O और N, ये 5 डिस्टिंक्ट लेटर हैं। ठीक है, 5 डिस्टिंक्ट लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और डबल ओ 2 बार आ रहा है, यस सर। मतलब ओ जो है 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ओ 2 बार आने का मतलब दो, इसको जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। यस सर। तो 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 240। ओके, थैंक यू गॉट सर। दैट? यस सर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, बाय बोथ वे यू विल गेट द सेम वैल्यू, दैट इज 240। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो 4 नहीं है, आप SALN कंसीडर कर रहे हो, तो उस केस यस में सर। वो तो छूट गया। ठीक है, अगर आप डबल ओ को प्लेस करने जा रहे हो तो डबल ओ को प्लेस कहाँ पे कर रहे हो? पांचवा पोजीशन आपके पास होगा तभी तो डबल ओ को इंसर्ट करोगे। तो जब आपने SALN लिया तो 4 ही लिया, तो उस केस में ओ की पॉसिबिलिटी तो हट ही गई ना फिर। यस ओके, सर। तो दैट्स वाई हम SALN के लिए 4 न लेके SAL, ये 5 लेटर्स ले लें, एंड दैट विल बी 5 फैक्टोरियल। और क्योंकि ओ 2 बार है तो उसके लिए जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके यस सर। ओके, so moving to the next, here we have one more problem. Here, the first one, the house has 4 doors and 10 windows. In how many ways can a burglar rob the house by entering through a window and exiting through a door? ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही आसान है। जो सबसे बड़ा टास्क है इसमें वो ये है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कब हमें सम रूल अप्लाई करना है, कब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हो तो वहां पे ये क्लियर होता है कि ये चैप्टर परम्यूटेशन का है, ये चैप्टर कॉम्बिनेशन का है। लेकिन जब पेपर में दिया जाएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम को पढ़ के ये समझना होगा कि हमें इसमें परम्यूटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। तो ये आइडिया बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, कहाँ पे हमें सम रूल यूज करना है। ठीक है, और इस चीज को हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखो आपसे पूछा गया क्या कि द हाउस हैज 4 डोर्स एंड 10 विंडोज। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ बर्गलर रॉब द हाउस बाय एंटरिंग थ्रू अ विंडो एंड एग्जिटिंग थ्रू अ डोर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट?
by entering through a window and exiting through a door. ठीक है, तो इस सेंटेंस का सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? तो इस सेंटेंस से हमें यह मालूम चलता है कि यहां पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। क्यों प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे? क्योंकि द सेंटेंस इज एंटरिंग थ्रू अ विंडो एंड एग्जिटिंग थ्रू अ डोर। तो विंडो से एंटर कर रहा है और डोर से एग्जिट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों ही इवेंट अकर हो रहे हैं। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी ईच वन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं तो वहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, और जब भी वन ऑफ द एक्टिविटीज अप्लाई होते हैं तो उस केस में हम सम रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी 40, 10 into 4 and that is 40 simply due to product rule. वर्तिका 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? वर्तिका सक्सेना 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 120, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 240, नॉट 480। ओके ओके, so here we have to apply product rule because both of these activities occur. डोर से एंटर कर रहा है और विंडो से एग्जिट कर रहा है। तो एंटर करने के लिए 4 वेज, एग्जिट करने के लिए 10 वेज, तो दोनों परफॉर्म करने के लिए 4 into 10 यानी कि 40 वेज। तो द आंसर विल बी 4040। Clear? Why we have applied here product rule? Because in the problem statement it is mentioned that the burglar has to enter through a window and exit through a door. तो विंडो से एंटर करने के लिए कितने तरीके हो गए? 10। डोर से एग्जिट करने के लिए कितने तरीके होंगे? 4। और दोनों के लिए विंडो से एंटर करना है और डोर से एग्जिट करना है, तो 10 into 4 and that is 40. Okay. Sorry. हेलो सर। सर इसमें बोला है कि हर बार अलग अलग विंडो से एंटर होगा वो, तो सर 4 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल होगा ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It is simply saying that in how many ways can a burglar rob the house by entering through a window. ठीक है, तो 10 विंडो है, तो जो बर्गलर है उसके लिए 10 ऑप्शन है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल क्यों होगा? 10 फैक्टोरियल अरेंज करना हो, यहाँ पे हमें अरेंज थोड़ी करना है। 10 विंडोज है, जैसे मान लो आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है, एक जगह पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, तो 2 ही रास्ते हैं ना, 2 फैक्टोरियल थोड़ी है। या 3 रास्ते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आइदर यू कैन चूज ए और बी और सी। इट इज नॉट 3 फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट? इन द सेम वे अगर आपके पास 10 विंडोज हैं, ठीक है, तो उन 10 में से कोई एक वो यूज करेगा। तो देयरफॉर द selection for one window will be 10C1, that is also 10। तो अगर हम C से करना चाहें तो उस केस में ये वैल्यू होगी 10C1। 10 में से एक विंडो, क्योंकि एट ए टाइम वो एक विंडो यूज करेगा और एक डोर यूज करेगा, और दोनों ही यूज करना है। एक विंडो भी यूज करना है, एक डोर भी यूज करना है। तो 10 में से एक विंडो सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 10C1। और 4 में से एक डोर सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 4C1। और दोनों ही सेलेक्ट करना है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C1 एंड दैट इज 40। या अगर हम सिंपल वर्ड में समझें
तो 10 दरवाजे हैं तो 10 में से कोई एक दरवाजा यूज करेगा तो उसके पास 10 ऑप्शन हो गए। मतलब 10 विंडोज हैं तो 10 में से कोई एक यूज करेगा तो उसके पास 10 ऑप्शन हो गए। 4 डोर हैं तो 4 डोर में से कोई एक यूज करेगा तो 4 ऑप्शन हो गए। और ये दोनों ही यूज करना है तो 10 इंटू 4 टोटल 40 ऑप्शन हो गए। गॉट दैट? वर्तिका, ये किसका आंसर है? 5C3 इंटू 6C1। कौन सा आंसर बता रहे हो आप लोग? ये सत्यम? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो क्या? ओके, सो हियर इन दिस वन वी विल हैव टोटल 40 ways by which the burglar can rob the house. Got the point? Okay, moving to the next. Here we have the answer, that is 40. Here the next problem is a committee of 4 is to be selected from 5 boys and 6 girls. In how many ways this can be done so as to include only one girl? तो यहाँ पे ये फिक्स है कि आपको गर्ल जो है एक ही लेना है, ठीक है? तो 6 गर्ल्स में से एक गर्ल सेलेक्ट करने का 6C1 हो गया। गर्ल्स के लिए कितना हो गया? 6C1। और हमें टोटल कमेटी बनानी है 4 लोगों की, तो एक गर्ल ले लिया तो 3 बॉयज लेना पड़ेगा। और 3 बॉयज हम किस में से सेलेक्ट कर रहे हैं? 5 में से, तो इसलिए 5C3। 5 में से 3 सेलेक्ट करने के लिए 5C3, ठीक है? और 6 में से एक गर्ल लेने के लिए 6C1। और ये दोनों ही लेना है क्योंकि हमें टोटल 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो देयरफॉर द आंसर विल बी आई थिंक 5 इंटू 4 10, 10 6 ये हो गया 10 इंटू 6 और 10 इंटू 6 हो गया 60। ओके, तो द आंसर विल बी 60। Is it okay? Yes, anyone having doubts in these 2 problems? You can ask. Since we have to select total 4 people, जिसमें से एक गर्ल होने चाहिए और रिमेनिंग 3 बॉयज होने चाहिए, तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज हमने सेलेक्ट कर लिया और 6 गर्ल में से एक गर्ल सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज 5C3 इंटू 6C1 and the value will be 10 into 6, that is 60. Okay, yes, moving to the next problem. Here we have how many different 2-digit positive numbers can be formed from the digits 0 1 2 3 up to 9 when repetition is not allowed. Yes, tell me, what is the answer? इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा आप लोगों को? इतने डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। आई होप ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, शशांक। Yes, any one of you? What is the answer? The letters are, the digits are 0, 1, 2, 3 up to 9. It is including total 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we are asking for repetition is not allowed. इसका मतलब ये हो गया कि रिपीटिशन नॉट अलाउड से क्या फर्क पड़ेगा? तो रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब ये हो गया कि आपके क्या क्या नहीं आएंगे वैल्यूज?
बताओ। 0 0 नहीं आएगा, 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, 7 7 नहीं होगा, 8 8 नहीं होगा, 9 9 नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपीटिशन नॉट अलाउड। हमें क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर का मतलब ये हो गया, ये 2 पोजीशन हो गए। पहले पोजीशन के लिए हमारे पास 10 पॉसिबिलिटी है, 0 से लेकर 9 तक। ये टोटल 10 नंबर में से कोई भी आ सकता है। और क्योंकि हम रिपीटिशन नॉट अलाउड बोल रहे हैं, तो दूसरे पोजीशन पे केवल हमारे पास 9 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, अगर ये रिपीटिशन अलाउड होता तो नंबर्स क्या होते हैं, 0 0 से लेके 99 तक। और ये टोटल कितने नंबर हो गए, 100। 100 क्यों आया, क्योंकि जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो n रेज़ टू पावर r होता है, n की वैल्यू 2 है, और सॉरी n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 2 है, तो 10 टू पावर 2 एंड दैट इज 100। जैसा कि आप देख पा रहे हो 0 0 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर्स हो गए, 100। ओके, 0 0 से लेके टोटल 99 तक कितने नंबर हो गए, 100। अब 100 में रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब ये हो गया, आपको 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ये 10 वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है। तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। ये आप सिंपली ऐसे देखो, पहले पोजीशन के लिए 10 ऑप्शन, दूसरे पोजीशन के लिए 9 ऑप्शन, तो टोटल कितने वैल्यूज हो गए, 90। ओके, गॉट दैट। तो हियर वी आर आस्किंग फॉर 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 2 डिजिट का मतलब ये हो गया, अगर हमें वैल्यूज लेना होता तो 01 को, 02 को, 09 को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सिंपली बोला गया है 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, तो 01 02 03 इन सबको हम 2 डिजिट ही कंसिडर करेंगे। वेदर दिस जीरो हैज सिग्निफिकेंस और नॉट, दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न। ठीक है, गॉट दैट। तो इसलिए इसका आंसर 81 नहीं होगा, rather the answer will be 90, because we are considering 01 02 03 04 05 up to 09 all as 2 digit numbers। ठीक है, अगर टू डिजिट इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है, तो इंटीजर की जगह अगर आपसे नंबर्स पूछा जाता, नंबर का मतलब हम वैल्यू से कंसर्न्ड है, तो उस केस में हम 01 02 03 09 को कंसिडर नहीं करते, तो उस केस में आंसर आपका होता 81। ठीक है, अगर हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करते तो वहां पे हम आंसर लिखते 81। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 डिजिट इंटीजर को बोला गया है, तो 01 09 को, 01 से लेकर 09 तक को हम 2 डिजिट इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके उससे बनाना है ना, 0 लेके 0 से 9 तक के वैल्यूज लेके। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें 0 को भी इंक्लूड करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, गॉट दैट। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज 90 इसके लिए। नेक्स्ट है, हाउ डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ बनाना। ओके, जस्ट वेट, आई हैव अ कॉल।
Yes, class, what is the answer? Okay, the letters of banana. तो अगर ये सभी डिस्टिंक्ट होते तो ये टोटल 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर सभी डिस्टिंक्ट होते तो टोटल अरेंजमेंट कितना होता? 6 फैक्टोरियल। अब इसमें जो है ए 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और एन 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर द आंसर विल बी दिस वन, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 60। ठीक है, तो द आंसर विल बी 60। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके, moving to the next. Here we have, yes, tell me, how many different numbers of 3 digits can be formed from the digits 1 2 3 4 5? ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? इफ रिपीटिशन आर अलाउड तब क्या आंसर होगा, और इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तब क्या आंसर होगा? टेल मी, कौन कौन सा सही है इसमें? तो हमें क्या करना है इसमें? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 और 3। ठीक है, पहला ये रिपीटिशन अलाउड होता है तो पहले के लिए भी 5 ऑप्शन होंगे, दूसरे के लिए भी 5 ऑप्शन होंगे, और तीसरे के लिए भी 5 ऑप्शन होंगे। क्योंकि जब भी रिपीटिशन अलाउड होता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होता है n रेज़ टू पावर r। यहाँ n की वैल्यू 5 है क्योंकि 5 डिजिट हम यूज कर रहे हैं, और r की वैल्यू 3 है, तो 5 टू पावर 3 ये कितना हो गया? 125। ये कब होगा? जब रिपीटिशन अलाउड होगा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं करते हैं तो उस केस में अगर पहले के लिए 5 ऑप्शन है तो दूसरे के लिए हमारे पास केवल 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक डिजिट ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। फिर तीसरे के लिए हमारे पास केवल 3 ऑप्शन होंगे क्योंकि 2 डिजिट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, द आंसर विल बी 60। तो 60 कब हो गया? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और 125 कब हो गया? जब रिपीटिशन अलाउड है। तो ये दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। टेल मी व्हाट इज द आंसर। इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं बताइए। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस 4 A B C D. So this is all about permutations and combinations. In next class we will start probability. मैंने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हो सकते हैं आपको शेयर कर दिए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत है, यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई यू द आंसर। ओके, यस वर्षा। वर्षा, Yes, sir. Sir, I want to tell about that queries I have sent already. ओके, क्या था आपका? वर्षा, एक मिनट। हाँ वर्षा बताइए। Sir, in which find the value of n? ओके ओके ओके, हाँ मैं इसका आंसर अभी आपको देता हूँ क्लास के बाद। ओके Okay, sir. यस यस, एनीवन हैविंग डाउट्स इन? ओके यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर। इसमें से दोनों में से चारों में से कौन सा? तो एक प्रॉब्लम है कॉमर्स के लिए और दूसरा प्रॉब्लम है एप्पल।
तो कॉमर्स वाला पहले अगर हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, तो कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स हैं, जिसमें से M 2 बार आ रहा है, E 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है। तो ये 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं, M, E और C, ये तीनों ही 2 बार आ रहे हैं। आई थिंक यही तीनों है ना, इसके अलावा तो नहीं है। ओके, तो देयरफॉर द व्हाट इज आंसर, तो इट विल बी टोटल, दैट इज टोटल मींस 8 फैक्टोरियल, टोटल हो गया आपका 8 फैक्टोरियल, और रिपीटिशन हो गया C का रिपीटिशन 2, E का रिपीटिशन 2 और M का रिपीटिशन 2। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर द आंसर विल बी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 5040। तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और एप्पल के केस में तो 5 लेटर्स हैं टोटल, तो 5 फैक्टोरियल, और इसमें P 2 बार रिपीट हो रहा है, तो केवल P ही रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो गया 120/2 यानी कि 60। तो B और C करेक्ट है इसमें, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ओके, तो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। किसी को अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, so thank you all, we'll meet again in the next class. वर्षा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं अभी रिप्लाई करता हूँ आपको क्लास के बाद।